All right, viewers, we're going to get a political face-off. We're going to go into it in just about 3 minutes between Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party and Manoj Tiwari from the Bharatiya Janata Party as the parties trade barbs over multiple issues. But I want to bring in, before that, our National Affairs editor, Rahul Srivastava, who's joining me right now to get a larger understanding, Rahul, for our viewers, that why is it the BJP has cornered the Aam Aadmi Party on all fronts, be it Delhi, where Satyendra Jain is concerned, the LG's role, the newly minted LG, be it Punjab, when it comes down to law and order. The BJP is going after the Aam Aadmi Party on all fronts. Preeti, sometimes politics is so multi-layered that one needs to go under the peels. Now, if you look at this war between, what I say is that in this war between the Aam Aadmi Party and the BJP, there is a very strange political kinship which is becoming visible between the two parties. Why I say that? That if you go back a little bit in time, there was an Arvind Kejriwal, the Chief Minister and the head of Aam Aadmi Party, who used to attack Narendra Modi ferociously. And then we found that he changed tack. Sometime 2 years ago, he stopped attacking Narendra Modi directly. And there was a calibration or attack by Mr. Arvind Kejriwal. As recent as last few days, if you see that there are television and radio ads on Yoga Day. Now, Arvind Kejriwal knows very well that the Yoga Day was proposed by Prime Minister Narendra Modi, June 21st. It is not the Congress which has ever talked about it, but he had endorsed it and given it his own spin. If you see the states where Arvind Kejriwal is foraying, right, the Goa is the best example that if there was no Aam Aadmi Party and Mamata Banerjee's TMC, the results of Goa would have been different. Now, if you see what the BJP, I will say, is doing, is the BJP is creating a direct battle between it and the Aam Aadmi Party. And it is largely in those spaces where either it does not have a very strong presence, say, for example, in Punjab, by taking on Aam Aadmi Party directly, eventually it is trying to do what it did in Bengal, that it became the principal challenger, edging out the Congress and the CPM. That's what the intent in Punjab is. In other states, say Gujarat, in Kashmir, and several others, the BJP realizes that it needs to create a division in the anti-BJP votes as far as the players against the BJP is concerned, to ensure that the BJP remains the key player. Right. And if you see, one of the most critical examples could well be in the coming days is elections in Gujarat and Himachal Pradesh, where the direct rival of the BJP is the Congress party, and the Aam Aadmi Party over the last few years is definitely not challenging BJP directly, but trying to eat into the votes of the Congress party first, create that space, political space for itself all across the country, and then become a challenger to the BJP. So right now, this transitory phase for the Aam Aadmi Party where it is going, the BJP is utilizing the Aam Aadmi Party as a vote diminisher or a divider for the rivals like Congress. Rahul Srivastava, appreciate you taking up the time, sir. Thank you for joining us, giving us that perspective. I want to pull in now our two guests for the big political face-off of the evening. Sanjay Singh, Rajya Sabha MP, Aam Aadmi Party joins me. Manoj Tiwari, Lok Sabha MP, Bharatiya Janata Party joins me. Thank you for joining us. बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े. सर, बस दोनों को यही कहूंगी कि पर्सनल अटैक से दूर रहिएगा. पर संजय जी, पहले आप पर आती हूं. मेरा पहला सवाल संजय जी यही है, हर अकाउंट पे देख लीजिए संजय जी आज आप, अगर दिल्ली में सत्येंद्र जैन के अरेस्ट के बारे में हो, अगर पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, मूसेवाला के मर्डर के बारे में हो, जो एलजी का रोल है, हर अकाउंट पे आज आपको बीजेपी कह रही है कि आपकी सरकार विफल है. सर, देखिए, बीजेपी क्या कह रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बीजेपी क्या कर रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है. बीजेपी कर रही है और उसके बाद आरोप भी लगा रही है, कह भी रही है, ये इनका बड़ा खेल है. मैं चाहूंगा थोड़ा इको कम करा दीजिए जी. बहुत If the PCR can hear us, please introduce his echo. प्रीति जी, इन्होंने हमारे मुख्य आज
वक्त क्या है, किस मुद्दे पे बहस होनी चाहिए थी, किस मुद्दे पे सरकार को चिंता होनी चाहिए थी और बात क्या हो रही है, यह भी हमें समझना जरूरी है। कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है कश्मीर में, कैबिनेट मंत्री को चिंता उसकी होनी चाहिए थी। मोदी सरकार को कैबिनेट बुला के उस पर चर्चा करनी चाहिए थी कि कश्मीरी पंडित वहां से पलायन करने की बात कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, एक के बाद दूसरी हत्या की घटनाएं हो रही हैं, उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, लोगों में गुस्सा है, रोष है। और हो क्या रहा है, सत्येंद्र जैन को कैसे बदनाम करना है, आम आदमी पार्टी को कैसे बदनाम करना है। यह पहली बार हमारे साथ नहीं हुआ प्रीति जी। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा हुआ, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा हुआ, हमारे तमाम मंत्रियों पे ईडी सीबीआई का छापा हुआ, 34 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, बाद में उनको कोर्ट से बरी किया, दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाई गई। एक दिन में 9 एफआईआर किया आदित्यनाथ जी ने मेरे ऊपर, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया, 23 एफआईआर किए। तो राजनीतिक द्वेष के कारण एक नहीं अनेक मंत्रियों को, विधायकों को, हम लोगों को बार बार उत्पीड़न और प्रताड़ना झेलना पड़ा है। यह कोई नई बात नहीं है। सत्येंद्र जैन पे एक और मामला सीबीआई का चला था और उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, इनके परिवार को जेल में डाल देना चाहिए। और बाद में क्या हुआ, 5 साल के बाद सर्विसेज के मामले में जिसमें सीबीआई जांच चल रही थी, 5 साल लग गया सीबीआई को और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई। यह जो मामला ईडी का है, यह 8 साल पुराना मामला है। 8 साल में 7 बार सत्येंद्र जैन जी की पेशी हुई ईडी के सामने और कभी उनको गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई। जब सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब होती है, लगातार आम आदमी पार्टी की वहां लोकप्रियता बढ़ रही है, केजरीवाल जी की रैलियां हुई, सभाएं हुई, मजबूत लोग पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। उस वक्त कह रहे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करना है, उठा के जेल में डाल दिया। तो आपके पास शक्ति है, ईडी है, सीबीआई है। वो ईडी सीबीआई नीरव मोदी पे काम नहीं करती, वो ईडी सीबीआई मेहुल चौकसी पे काम नहीं करती, विजय माल्या पे नहीं करती, ललित मोदी पे नहीं करती, हजारों करोड़ लूटने वाले लोगों पे नहीं करती, येदुरप्पा पे कार्रवाई नहीं करती, रेड्डी ब्रदर्स पे नहीं करती। वो ईडी सीबीआई व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं करती, राफेल घोटाले पे कार्रवाई नहीं करती। वो ईडी सीबीआई बनी किसके लिए है, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। तो आपके पास आज ताकत है, आप इसका जितना दुरुपयोग करते हैं कीजिए, लेकिन इन एजेंसियों की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ी चोट और डेंट लगी है। 8-8 साल आप एक मामले को चला रहे हैं और जिसमें कि कुछ नहीं निकल रहा है। संजय जी, आपके को पैनलिस्ट होकर बाहर आएंगे। जी संजय जी, आपके को पैनलिस्ट आना चाह रहे हैं। मैं मनोज तिवारी के पास जाना चाहूंगी। मनोज तिवारी जी, आम आदमी पार्टी, संजय सिंह जी जो अभी बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि आप डर गए हैं, हिमाचल में आपकी लोकप्रियता कम हो रही है, आम आदमी पार्टी की बढ़ रही है, जो आम आदमी पार्टी कह रही है, इसीलिए आप डर गए हैं और आप एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, हिमाचल में क्या होगा ये तो चुनाव में पता चल ही जाएगा, लेकिन संजय भाई साहब ने 2-3 बातें जो कही, वो स्वयं में ही उसी पे मैं सवाल करना चाहता हूं। आज सत्येंद्र जैन जी के ऊपर क्या केस है? हवाला कारोबार का केस है। फर्जी कंपनियां बना करके और ब्लैक मनी को हवाला के रूप में ले जाकर फर्जी कंपनियों के नाम पे दिल्ली की जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा लूटने का आरोप है। और वो जैसे संजय भाई अभी कह रहे थे 7 साल से, मैं पूछना चाहता हूं, ये तो ईडी ने इतना टाइम दे दिया कि 7 साल कह रही है कि आप इसका कोई क्लैरिफिकेशन दो, इसका कोई रीजनेबल रीजन दो, लेकिन सत्येंद्र जैन जी लगातार इसमें फेल रहे। और आज के दिन में एक हवाला कारोबारी को, एक भ्रष्टाचारी को, जहां आम आदमी पार्टी जैसे ईमानदारी के साथ जितना लोग अपनी बातें करते हैं, उनको तो इसको अटैक करना चाहिए, ऐसे लोगों को अपने पास से हटाना चाहिए, स्वयं डिमांड करनी चाहिए कि जो भ्रष्टाचारी है उसको
उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज एक हवाला कारोबारी को बचाने में लगी है आम आदमी पार्टी। आज अरविंद केजरीवाल जी को इतनी तकलीफ हो रही है, वही अरविंद केजरीवाल जी जो कई मामलों में कहते हैं कि हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं देते, और वही आज कहते हैं हमने सारे कागज देख लिए हैं, इसलिए सत्येंद्र जैन बिल्कुल बरी कर दिए जाने चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? एक संस्था जो कि ऐसे ही आपराधिक कारनामों का सत्य जानने के लिए है, तो ऐसे में इतने समय बाद भी अगर आप अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे सकते, और एक मैं आश्चर्यचकित हूं कि जब जब ऐसे भ्रष्टाचारियों पर, हवाला कारोबारियों पर, जनता की कमाई लूटने वालों पर जब कार्रवाई होती है तो ये लोग कहते हैं हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं। अरे इसमें भैया झुकने की कोई बात ही नहीं है, ये तो सारा कागज में तय है, कितना पैसा कैसे हवाला से गया, कैसे फर्जी कंपनी बनी, तो ये सारी चीजें जनता के सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी भय देने के लिए, उसकी जो सरकार है वो ऐसा कार्य नहीं करती। और मैं आपके चैनल से स्पष्ट बता दूं कि ये कोई सत्येंद्र जैन जी नहीं है। क्या ये राहुल गांधी जी और सोनिया जी पे केस नहीं हुआ है? संजय जी बोलते बोलते केवल आम आदमी पार्टी के लोगों का नाम दिए। मेरा मानना है कि इस देश में निश्चित रूप से जब भी कोई कार्रवाई होती है, सत्य तक जाने के लिए समय लगता है। इसमें हमारे केंद्र सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। जो बेईमानी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसको सजा होगी, और कोई कितना भी चिल्लाए, भ्रष्टाचारियों को सजा होनी ही चाहिए। संजय जी, एंटी करप्शन पे पेटेंट तो नहीं है ना आम आदमी पार्टी का? वो कह रहे हैं कि अगर जब आप चाहें उसको एंटी करप्ट कर दें, किसी को बोल दें कि ये अभी करप्ट है, इसको हम निकाल रहे हैं। सत्येंद्र जैन पे केस तो चल रहा है 7 साल से, अगर वो करप्ट नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, तो छूट जाएंगे। देखिए, ये ईडी और सीबीआई को बहुत मजबूत संस्था मानते हैं मनोज तिवारी जी, और वो ऐसी मजबूत संस्था देश की 7 साल तक कुछ नहीं खोज पाई सत्येंद्र जैन के खिलाफ। यही इस बात का प्रमाण है कि वो बेगुनाह है। उनके खिलाफ कुछ नहीं था। 7 बार पेश हुए, 7 बार जो पूछताछ उन्होंने की उसका जवाब दिया। संजय भाई, मनोज जी से पूछ लीजिए पहले, तब मैं बोलूंगा। जब वो बोल रहे थे तो मैं चुप था। ये बात बहुत अच्छी है कि आप हमारी दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पहले उनसे जवाब नहीं, आप बहुत प्यार से बात करें, ऐसे ही बने रहिए। संजय जी, वो जब बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। मनोज जी, आप संजय जी को भाई करके कह रहे हैं, संजय भाई को फिर खत्म करने लीजिए, फिर आप बोलिएगा। बिल्कुल खत्म करेंगे। मैं ये बोल रहा था, एक लाइन गलती हो गई, बीच में बोल पड़ा कि 7 साल पूरी जानकारी लेने के बाद ही ये कार्रवाई हुई है, ये भी याद रखना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपके पास वापस आऊंगी, संजय जी को कंप्लीट करने दीजिए। संजय जी बोलिए, आप अपना पक्ष रख रहे थे। तो मेरा यह कहना है कि 2 मंत्रियों को हटाया गया, एक दिल्ली में और एक पंजाब में। जैसे ही साक्ष्य सामने आए, उसमें सत्यता लगी, हमने हटा के किनारे किया, उनको बर्खास्त किया, कार्रवाई के लिए भी आगे लिखा, जेल भेजा। इस पूरे मामले में बार बार पूछताछ के जरिए, कागजों के जरिए जितना कुछ देखा गया, जितना कुछ सामने लेकर आए, 2013 में जिस कंपनी से वो इस्तीफा दे चुके हैं, 2015-17 में कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसमें कह रहे हैं कि साहब आप दोषी हैं। जिस कंपनी में वो किसी पद पर नहीं है, इस्तीफा दे चुके हैं 13 में। तो आरोप आपको लगाना है। मैं कहता रहा हूं, आपने किसको छोड़ा? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम विधायक, सब पे आरोप लगाए, सब पे मुकदमे लिखे, सब पे जांच कराई, निकला कुछ नहीं। इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। अब मामला न्यायालय में है तो वहां अपना पक्ष रखने दीजिए। और क्या कार्रवाई करने के लिए सत्येंद्र जैन पर बचे सिर्फ आपको मिलते हैं, या आम आदमी पार्टी के लोग मिलते हैं, या दूसरी पार्टियों का भी और दूसरे पूंजीपतियों का भी जिक्र मैंने किया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, क्या किया आपने इनके खिलाफ? जो देश के लोगों का हजारों लाखों करोड़ रुपए लूटकर बाहर विदेशों में बैठे हुए हैं। आप आज तक कुछ भी नहीं कर पाए। राफेल का घोटाला हुआ, 500 करोड़ का जहाज 1627 करोड़ में खरीदा गया। और मनोज जी को शायद याद नहीं होगा, ये तब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। दुर्भाग्य से ये उस पार्टी में है जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।
और इनके एक नेता थे, स्वर्गीय हैं, वो इस दुनिया में नहीं, उन्होंने कहा था पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम नहीं, उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, केंद्रीय मंत्री थे देश के। तो अब व्यापम घोटाला इनके राज में हुआ, जल जीवन मिशन का घोटाला इनके राज में हुआ, और अभी मौजूदा मैं बता दे रहा हूं। मनोज जी, आपको ज्यादा दूर सोचने की आवश्यकता नहीं है। 4 किसान और एक पत्रकार को मंत्री का बेटा कुचल के मार देता है और पूरी की पूरी सरकार उस मंत्री को बचाने के पक्ष में खड़ी हो जाती है। आज तक मंत्री को हटाया नहीं गया, पूरी की पूरी सरकार आपकी खड़ी है उस मंत्री के साथ। चलिए, अब तो कौन किस तरह से आचरण करता है, कौन किस तरह से काम करता है, ये पूरा देश देख रहा है। मनोज जी, जो संजय जी कह रहे हैं कि आरोप आपको लगाना है, जैन जी बहाना है, निशाना हिमाचल प्रदेश है। देखिए, अभी संजय भाई ने 2 उदाहरण दिए। एक उन्होंने किसी भाजपा के नेता का उदाहरण दिया, अध्यक्ष का। याद रखिए कितनी जल्दी कार्रवाई हुई थी, भारतीय जनता पार्टी है संजय भाई। और आपने दूसरा भी जो नाम लिया, अब आप कहते हैं कि बेटा गलती करता है तो बाप को उसकी सजा क्यों न दें। तो अब इस असर पे तो आप सोचिए, लेकिन उस केस में भी ये सरकार थी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की, वो भी गिरफ्तार होते हैं, उनको भी सामना करना पड़ता है कानूनी कार्रवाई का। तो याद आपने जो उदाहरण दिया उसी में सब कुछ स्पष्ट है। लेकिन आज जहां हवाला कारोबार सिद्ध हो चुका है, सत्येंद्र जैन एक भ्रष्टाचारी है, ये सत्य 7 साल में तय हो गया, उसके बाद भी आप उनकी पक्षधर हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल जी की टीम को मैं बोलूंगा कि जनता के सामने आपका जो चेहरा है, जिसको आप कहते हैं सबको सिखाते हैं ईमानदारी, लेकिन अपना मंत्री हवाला कारोबारी, तो फिर उसमें सबके सामने है और इसमें कोई इमोशनल बातें नहीं आनी चाहिए। चुनाव तो हमेशा आते रहते हैं, चुनाव कब नहीं होता है? एक चुनाव खत्म हुआ, 3 महीना बाद दूसरा चुनाव हुआ, अभी फिर 23 जून को उपचुनाव है। ये सब चुनाव तो चलते रहेंगे, लेकिन क्या चुनाव की आड़ में किसी को भ्रष्टाचार करने दिया जा सकता है? ये हमारा प्रश्न है। और याद रखें कि कभी भी आज की जो सरकार है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की, वो ऐसी स्वतंत्र संस्थाओं पे जरा भी रोक टोक नहीं करती। जो भ्रष्टाचार करेगा वो भरेगा, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। मनोज जी, संजय जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, पर अगर जो भ्रष्टाचार करेगा तो वो ऑपोजिशन लीडर ही करेंगे क्या? वो कहते हैं अगर बीजेपी में आए तो वॉशिंग मशीन हो जाती है, बिल्कुल साफ सुथरे निकल के आते हैं वही लीडर जो दूसरी पार्टी से आते हैं। संजय जी, आप कुछ दिखाना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कोई सीबीआई का छापा होता है, जब भी कोई ईडी का छापा होता है, ये पहली बार थोड़ी हम सुन रहे हैं मनोज तिवारी जी से। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसी स्वर में, जैसे मनोज भाई बोल रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इनको तुरंत फांसी पे चढ़ा दो, इनको उठा के जेल में डालो। ये बातें आज नहीं, पहली बार हम सुन रहे हैं। जब मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई छापा हुआ तब भी हमने ऐसे ही सुना था इनको, मनीष सिसोदिया पे छापा हुआ तब भी हमने सुना था इनको। और मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं, ये आप ही की सीबीआई है, कोई दूसरी सीबीआई नहीं है। एक सर्विसेज का मामला चलाया सत्येंद्र जैन के खिलाफ, इसी सत्येंद्र जैन के खिलाफ जिसको आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। 5 साल तक उसकी जांच की सीबीआई, कोई छोटी संस्था तो है नहीं। 5 साल पूरी एड़ी चोटी जान लगा दी कि नहीं हमें निकालना है भ्रष्टाचार इसका, और 5 साल के बाद क्लोजर रिपोर्ट लगा के कह दिया सत्येंद्र जैन बेदाग है, उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। आप बताइए, 5 साल तक एक आदमी को आपने बदनाम किया, उसके परिवार को प्रताड़ित किया, पूछताछ के लिए बार बार घर में गए, तो आप इसको दुरुपयोग मानेंगे या सदुपयोग मानेंगे? पर संजय जी, और सीबीआई किसी पे ऐसे एफआईआर नहीं कहती। संजय जी, मनोज जी प्राइमरी इंक्वायरी होती है, फिर उस पर एफआईआर होती है। 1 साल तक इस मामले में प्राइमरी इंक्वायरी हुई, तब एफआईआर हुई। जी मनोज जी वापस आ रहे हैं अभी। हाँ, पर संजय जी, बात है छापे तो बहुतों पे पड़े ना आपकी पार्टी में, पर अरेस्ट तो सिर्फ सत्येंद्र जैन ही हुए, तो कुछ तो होगा ही। अरेस्ट हमारे तमाम विधायक अरेस्ट होकर जेल गए। आप बताइए, तमाम विधायकों को जब चाह अरेस्ट किया, हमारे मंत्री को अरेस्ट कर चुके हैं इसके पहले। तो कोई ये पहली घटना नहीं है जी। हमारे साथ। तो ये अरेस्ट, इस प्रकार के हमले पहले भी बार बार होते रहे हैं।
हमारे तो चलिए, political हमारे vendetta कह मुख्यमंत्री रहे के हैं। प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार जी। जी को अरेस्ट किया, गालियां दी, उनको प्रताड़ित किया कस्टडी के अंदर। कुछ नहीं निकला, आज तक कुछ भी नहीं निकला। मनोज जी आ गए तो हैं। आप मनोज जी, क्या हाँ, इसको जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं मानेंगे? मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी आम पार्टी के विधायकों पे जो केस हुए हैं, क्या भाजपा ने करवाया था? अगर जनता का कोई व्यक्ति, कोई आम व्यक्ति जो उससे जिसको नुकसान हुआ है, जिसका लूट हुआ है, जिसके साथ बदतमीजी हुई है, अगर उसने केस किया तो आप क्या चाहते हैं कि केस चले ही नहीं? केस चलने पे कुछ बेगुनाह भी हुए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता संजय भाई कि जनता कहे कि इन्होंने मेरे को मारा है, इन्होंने मेरा लूटा है, इन्होंने बलात्कार किया है। ये सारे केस आप सोचिए आम आदमी पार्टी के विधायकों पे हैं। बलात्कार का भी आरोप है, मारपीट का भी आरोप है, लूट का भी आरोप है, कब्जा का भी आरोप है। लेकिन अगर कुछ लोग उसमें बेगुनाह सिद्ध हुए तो उनको कैसे जेल होगी? जांच तो होगी ना साहब। मैं इतना कहना चाहता हूं। और मैं बार बार यही बोलूंगा कि आप बोल रहे हैं 7 साल लगा। अगर सीबीआई में कोई चीज छुपा ले गया, अगर कोई आरोपी है तो किसी एजेंसी ने उसको ढूंढ लिया तो फिर उसको सजा होगी। और आप याद रखें, मैं पर्सनली नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आज वो आरोप उनका सत्य सिद्ध हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी का इस तरह एक चोटी का जोर लगाना, ये बहुत एक खतरनाक इशारा करता है, जो जनता भी देख रही है और हम भी देख रहे हैं। संजय जी ब्रेक में जाऊंगी, पर 30 सेकंड बोलिए। संजय जी, आप वापस कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, पहली बात तो ये न्यायालय में है मामला, अभी कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है। अभी न्यायालय में हमारे वकील सारे साक्ष्य, सारी जानकारियां जो हमारे पास है वो हमारा पक्ष रखेंगे। दूसरी बात, मैं मनोज भाई से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, मित्र, पूरे हिंदुस्तान में पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसके राज उत्तर प्रदेश में मेरठ के एक थानेदार ने अपने थाने के बाहर बैनर लगा दिया कि भाजपाइयों का अंदर आना मना है। तो आपके लोग बड़े विनम्र, बड़े सीधे, बड़े अच्छे हैं, और आम आदमी पार्टी वाले सारे अपराधी, सारे मुलजिम हैं। जितने विधायकों पे, जितने नेताओं पे मुकदमा होगा सारे आम आदमी पार्टी के होंगे, और बीजेपी वालों पे एक भी एफआईआर और मुकदमा नहीं होगा। और वो सब कोर्ट से बरी भी हो जाएंगे। अगर हमारे ऊपर मुकदमे सही है तो कोर्ट से बरी कैसे हो गए? चलिए, मैं ब्रेक में जाऊंगी, बट मनोज जी, आपका वीडियो चला गया था, 10 सेकंड है, कुछ बोलना चाहेंगे? फिर ब्रेक ले रही हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी हवाला कारोबारी को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी इतना परेशान न हो। और आपने ठीक कहा, अभी भी कानून है देश में, आपके पास साक्ष्य हैं, वहां जाएंगे, अगर बेगुनाह होंगे तो बचेंगे। अभी से इतना परेशान होने की क्या जरूरत? चलिए फिर इसी पे छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला, हमसे जुड़े। संजय जी आगे भी इज गोइंग टू बी विद अस।